یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ سلطنت مغلیہ کا خورشید اقبال ڈوب چکا تھا اور سرحد سے لے کر مدراس کے ساحل تک سارا کشوری ہند انگریزی اقتدار کے زیر نگی تھا۔ لکھنؤ میں ایک انگریز کمشنر بحال کیا گیا۔ چونکہ اس وقت دفتری زبان فارسی تھی، اس لیے کمشنر کو فارسی زبان سیکھنے کی شدت سے ضرورت محسوس ہوئی اور اس کے لیے مشہور فارسی دان ملا سراج الدین کی خدمات حاصل کر لی گئیں۔ ملا جی روزانہ شام کو 4 بجے انگریز کمشنر کو ٹیوشن پڑھانے آتے تھے۔ موصوف عصر اور مغرب کی نماز کمشنر صاحب کی کوٹھی پر ہی ادا کرتے تھے۔ کمشنر کی ایک نوجوان لڑکی تھی۔ ہزاروں لالا رخوں اور زہرہ جمالوں کی کہانیاں اس کی ایک ایک ادا میں سمٹ آتی تھیں۔ سرشار آنکھوں سے شراب کے پیمانے چھلکتے، مہتاب کی طرح درخشان پیشانی ہر وقت موج نور میں غرق رہتی، چلتی تو فتنہ حشر جگاتی، باتیں کرتی تو پھول جھڑتے، جمال و رانائی اور حسن کا وہ ایک مجسمہ تھی۔ مغربی تہذیب کے گھرانے میں وہ ہر وقت پردے میں رہتی تھی۔ ایک تو ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، اس پر مزاج میں نفاست، طبیعت میں لطافت اور ناز و نعمت کی زندگی کی وجہ سے سارے خاندان کی راج دلاری بن گئی تھی۔ سیرت خصلت کے اعتبار سے بھی وہ نہایت پاک طینت، نیک سیرت اور شریف و طبع لڑکی تھی۔ شرم و حیا، علم و ہنر، ذہانت و دانائی اور متانت و سنجیدگی میں دور دور اس کا کہیں جواب نہ تھا۔ سارا قبیلہ اس کے حسن اخلاق سے مسخر تھا۔ غیرت فطری ہی کا نتیجہ تھا کہ والدین کے اصرار کے باوجود کبھی وہ گرجا گھر نہیں جاتی تھی۔ سینے شعور میں قدم رکھتے ہی اس نے باہر کی درسگاہ سے اپنا سلسلہ تعلیم منقطع کر لیا تھا اور اب گھر پر ہی شریف معلومات کے ذریعہ اس کی تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ علوم و فنون کی مختلف شاخوں میں مہارت رکھنے والی معلومات اپنے وقت پر آتی تھیں اور سبق دے کر چلی جاتی تھیں۔ تدریس کا یہ سلسلہ صبح 8 بجے سے شام کے 4 بجے تک جاری رہتا تھا۔ ملا جی کو آئے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے۔ کمشنر صاحب فارسی کی ابتدائی کتابیں ختم کر چکے تھے اور اب حضرت سعدی کی گلستاں چل رہی تھی۔ کہتے ہیں ملا جی بہت خوش الحان قاری بھی تھے۔ جب مغرب کی نماز میں وہ جہر سے قرآن پڑھتے تو کمشنر صاحب کی پوری کوٹھی عالمی قدس کے نغموں سے گونج اٹھتی تھی۔ ایک دن کمشنر صاحب کی صاحبزادی ٹھیک مغرب کے وقت اس کمرے کے قریب سے گزری جہاں ملا جی نماز پڑھ رہے تھے۔ قرآن کی آواز سن کر اس کے قدم اچانک رک گئے۔ چند ہی لمحوں کے بعد دروازے کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ قرآن کے سہرے جلال سے دل کے گھائل ہونے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ آن واحد میں ایک طیب و طاہر روح تجلیات قرآنی کی بارش میں شرابور ہو گئی۔ زندگی میں پہلی بار اس نغمق حیات سے اس کے کان آشنا ہوئے تھے۔ ایک نامعلوم کیف سے وہ بے خود ہو گئی۔ عالمی اشتیاق میں پھر وہ آگے بڑھی اور پردے کی اوٹ سے ملا جی کو ایک نظر دیکھا۔ نماز کی ہیبت عبادت دیکھ کر وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ ہاتھ باندھ کر ساکت ادب سے کھڑا رہنا، پھر سر نگوں ہو جانا اور اس کے بعد ماتھا ٹیکنا، عجز و نیاز کی یہ ادائیں اس کی آنکھوں کے لیے اچنبھے سے کم نہیں تھیں۔ اب سے پہلے اس کی آنکھوں نے یہ روح پرور مناظر کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جب تک ملا جی نماز پڑھتے رہے وہ تصویر حیرت بنی دیکھتی رہی۔ نماز ختم ہو جانے کے بعد جب وہ واپس لوٹی تو جذبات کے سمندر میں ایک تلاطم سا تھا۔ وہ از خود اندر سے کسی نامعلوم سمت کی طرف کھنچی جا رہی تھی۔ اس دن ساری رات اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ آیات قرآنی کا کیف اور نماز کی روحانی کشش ایک لمحے کے لیے بھی اس کے ذہن سے اوجھل نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ساری رات یہ سوچتی رہی کہ شیریں نغموں کی سحر ترازی مسلم، لیکن قرآن کا یہ اثر جس نے دل کے کشور کو تہ و بالا کر دیا ہے اسے صرف خوش الحان آواز کا نتیجہ نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یقیناً اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت بول رہی ہے جس کا رشتہ روح انسانی کے ساتھ منسلک ہے۔ پھر اگر نماز نشست و برخاست ہی کا نام ہے تو پھر میرے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ قیام و قوت کے سوا انسانوں کی زندگی میں کیا ہے؟ پھر دنیا میں کتنے دل ہیں جو کسی کی نشست و برخاست پر عاشق ہوئے ہیں؟ اگر واقعتاً نماز کی یہی حقیقت ہے تو دل دیوانہ کی لغزش میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ پھر سوچتی ہے کہ اتنی آسانی سے دل کی تقصیر کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہو نہ ہو یہ نماز بھی اس عالم کی چیز ہے جہاں انسانی روح کا مزاج ڈھلتا ہے اور جہاں سے مانوی حیات کے چشموں کا دھارا پھوٹتا ہے۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی لیکن روحانی اضطراب کی آگ ویسے ہی سلگتی رہی۔ اپنا حال خود اپنی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوئی، دن نکلا، لیکن آج کتابوں میں جی نہیں لگ رہا تھا۔ سارا دن شام کے انتظار میں کٹا۔ حسب معمول عصر کے وقت ملا جی ٹیوشن پڑھانے کے لیے تشریف لائے۔ جوں ہی ان کے قدموں کی آہٹ ملی، فرتے شوق سے صاحبزادی کا دل اچھلنے لگا۔ بڑی مشکل سے سورج ڈوبا اور ملا جی مغرب کی نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔
शहजादी कबल अज वक्त ही पिसे पर्दा कान लगाए खड़ी थी। कुरान की आवाज़ कान में पड़ते ही दिल का हाल बदलने लगा। रूह नगमक जावेद के कैफ में डूब गई। आज दिल ही मुतासिर नहीं था, बल्कि आंखें भी इश्कबार थीं। कई बार रुमाल से बहते हुए आंसू खुश्क किए, लेकिन चश्मे की तरह उस वक्त तक सैलाब अमंडता रहा जब तक मुल्ला जी ने नमाज ख़त्म नहीं कर ली। इसी आलमी करब में कई महीने गुजर गए। दिल के शोरे महशर से कोई वाकिफ न था। हर रोज़ मगरिब की नमाज के वक्त पर्दा से लगा हुआ जज्बात के तलातुम का जो तूफ़ान उमंडता था, खुद मुल्ला जी को भी उसकी खबर नहीं थी। अब कई महीने के अरसे में मसीही घराने की दोशेज़ा नामालूम तौर पर इस्लाम से बहुत करीब हो गई थी। नमाज़ो कुरान के इश्क ने अब उसे उस रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया था जो किसी भी वारिफ्ता हाल मुसाफिर को ज़रा सी देर में मदीने तक पहुंचा देता है। दूसरे लफ्ज़ों में, दिल इस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गायबाना अकीदत से सरशार होता जा रहा है, जिसने दुनिया को कुरान और नमाज जैसी नेमत लाजवाल से बहरा अंदोज किया। अक्सर रात की तन्हाई में सोचा करती थी कि जिस रसूल के लाए हुए पैगाम में ये कशिश है, खुद रसूल में कितनी कशिश होगी। बिला वजह अरब के सहरा नशीन उस पर फरीफ्ता नहीं थे। इसकी ज़ेबाई का यही जलवा क्या कम है कि आज उसके नादीदा उशाक से सारी दुनिया भर गई है। यकीनन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मत व बुलंदी की एक सरापा हकीकत का दूसरा नाम है। नाजों की पली हुई लाडली बेटी रोज़ाना सुबह को नए कपड़े जेब तन करके बाप को आदाब किया करती थी। बाप के दिल की शादाबी और रूह की आसूदगी का ये सबसे बड़ा जरिया था। आज वो बड़ी सज धज से आदाब करने आई थी। आदाब से फारिग होकर मचलते हुए नाज में कहा, फादर, एक दरखास्त पेश करूं, कबूल फरमाइएगा। बेटी के इन अल्फाज पर बाप की रूह झूम उठी। शफकत पिदरी का जज्बा फूट पड़ा। फरते मोहब्बत में बेकाबू होकर जवाब दिया, मेरी लख्ते जिगर, सारी जिंदगी ये आरजू रह गई कि दूसरे बच्चों की तरह तुम भी कुछ फरमाइश करो और मैं उसे पूरी करके तुम्हारी मुसर्रतों का तमाशा देखूं, लेकिन ना जाने तुम्हारी तबीयत कैसी वाक़ हुई है कि ये आरजू ही रही। अब जबकि ज़िंदगी में पहली बार अपने अरमान के इजहार के लिए तुम्हारी ज़बान खुली है, तो क्या अब ये भी पूछने की ज़रूरत है कि मैं उसे कबूल करूँगा या नहीं? तुम्हारे अलावा कौन मेरी ज़िंदगी की उम्मीदों का मरकज़ है जिसके लिए कोई नाज उठा रखूँगा? बेटी ने निगाह नीची किए, रुकते झजकते हुए बड़ी मुश्किल से इतने अल्फाज अदा किए, मुझे इजाज़त दीजिए कि मुल्ला जी से मैं फ़ारसी की तालीम हासिल करूँ। बाप ने ये सुनकर एक कहका लगाया और बेटी को थपकाते हुए कहा, इतनी ज़रा सी बात के लिए तुमने इतनी ज़बरदस्त तमहीद बांधी? मेरा तो गुमान था कि तुम कोई बहुत अहम फरमाइश करने वाली हो। तुम्हें इजाज़त ही नहीं बल्कि तहसीन आफरीन भी है कि तुम्हारे अंदर हुसूल इल्म का शौक़ जाग उठा है। दूसरे दिन मुल्ला जी बादे नमाज़े मगरिब साहबजादी को भी फ़ारसी की तालीम देने लगे। मेहनत व जहानत ने थोड़े ही अरसे में फ़ारसी ज़बान से अच्छी तरह रोशनास कर दिया। दौरान तालीम ही में एक दिन साहिबजादी ने मुल्ला जी से कहा, अगर आपको जहमत न हो तो पैगम्बर इस्लाम की सीरत पर मुसलमान मुसन्निफीन की चंद किताबें मेरे लिए फराहम कर दीजिए। मुल्ला जी को उस अजीब व गरीब फरमाइश पर हैरत तो ज़रूर हुई, लेकिन वो कुछ कह न सके। दूसरे दिन चंद मुस्तनद और मुफीद कुत्ताबें लाकर हवाले कर गए। नमाज़ो कुरान वाले पैगम्बर की ज़िंदगी से वाकिफ़ होने का मौका हासिल करके साहिबजादी की मुसरतों की कोई इंतहा नहीं थी। जज्बा शौक़ के आलम में किताब का पहला वरक खोला और कायनात की सबसे मुअज़्ज़म तरीन हस्ती का मुताला शुरू किया। वरक वरक पर फ़ज़ल व रहमत, जलाल व जमाल, अज़मत व ज़ेबाई, तहारत व तक़दीस, सब्र व तहम्मुल, जूद व करम, ज़ुहद व इबादत, फ़क्र व ईसार, इल्म व हिकमत, एजाज़ व तवानाई, कुदरत व इख्तियार, कुर्ब इलाही की जलवा आराई और शौकत व इक़्तिदार के मनाजिर देखकर दिल की दुनिया बदलने लगी। पलकों पे मोतिये के कतरे झिलमलाने लगे। लालाजार की पंखड़ी जैसे होंठ हरकत में आए और एक मनफी सी आवाज़ फ़िज़ा में गूंजी, मोहम्मद के खुदावंदा, तो गवाह रहना, मैं ईसाई मज़हब से निकलकर तुझ पर और तेरे आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाती हूँ। ए कादिर व तवाना माबूद, तेरे महबूब पैगम्बर का वास्ता, मेरी आने वाली ज़िंदगी को कुफ्र की यलगार से महफूज रखना। सीने में इश्क़ मोहम्मदी का चिराग जल चुका था। अब ईमान बिल गैब की एक नई दुनिया नज़र के सामने थी। हयात सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साला ज़िंदगी जहन में घूम रही थी। सरकार का जिस्म, उनका नूरानी पैकर, चेहरा, सुरमगे आँखें, अम्बरें जुल्फ़ें, तसव्वुरात की दुनिया पर छाया हुआ था।
सारी रात इश्क और हैरत में गुम होकर पिछले पहर जूं ही आंख लगी तो किस्मत की अंधेरी रात चमक उठी कि वो दोनों जहान के वाली ख्वाब में सामने खड़े हैं। रहमत, नूर, मोहब्बत और दिलकशी की जो दुनिया तसव्वुर में थी, अब उसकी तस्दीक का नूर भी आंखों ने देख लिया था। तहज्जुद के वक्त करीब वाली मस्जिद से जैसे ही मुअज्जिन ने आशहदु आन ला इलाहा इल्लल्लाह और आशहदु आना मुहम्मदन रसूलुल्लाह का समरा फिजा में नश्र किया, आंख खुल गई। कलमा इस्लाम सुनकर दिल बेताब हो गया, ईमान की उमंगें जाग उठें। आज चेहरा बशाश से केला जा रहा था, कौनैन की अर्जमंदी बाल बाल से फूट रही थी। एक लाला रुख हसीना का अपना ही जमाल किया कम था कि वो चश्मके नूर में गोता लगाकर आ गई थी। अब तो गोया जन्नत की हूर मालूम हो रही थी। फरते बंदगी से चेहरे पर नजर जमाना मुश्किल था। हुस्नो दिलकशी की ये नुमाया तजल्ली देखकर माँ बाप को भी हैरत जरूर थी, लेकिन वो उसे हजरत मरियम की अकीदत का फैजान समझ रहे थे। उस दिन काफी इंतजार की जहमत उठाने के बाद मुल्ला जी तशरीफ लाए। नमाज मगरिब से फरागत के बाद साहबजादी पढ़ने के लिए हाजिर हुई। जूं ही चेहरे पर नजर पड़ी, मुल्ला जी की आंखें फटी रह गईं। साहिबजादी ने कहा, हैरत न कीजिए, मुझे कलमा पढ़ाकर मेरे इस्लाम पर गवाह बन जाइए और देखिए मैंने अपना नाम फातिमा रख लिया है। आइंदा मुझे इसी नाम से याद कीजिएगा। मुल्ला जी कमजोर दिल आदमी थे। बुढ़ापे में कमिश्नर साहब को पढ़ाने का जो मौके मिल गया था, उसे वो बहुत नेमत समझते थे। फिर साहिबजादी के हालात से भी बेखबर थे। लरजते हुए साहिबजादी को जवाब दिया, दिल का मुसलमान हो जाना खुदा के तई निजात के लिए काफ़ी है साहिबजादी। अभी आप अपने इस्लाम का ऐलान न करें। मुझे अंदेशा है कि मैं आपको कलमा पढ़ाकर इस्लाम में दाखिल कर लूं और उसकी इत्तला कमिश्नर साहब को हुई तो हम पर भी वबाल आएगा और आपकी ज़िंदगी भी खतरे में पड़ जाएगी। साहिबजादी मुल्ला जी की कमज़ोरियों से वाकिफ़ थी। ये जवाब सुनकर खामोश हो गई। फ़ारसी की तालीम ख़त्म हो जाने के बाद फ़ातिमा ने कुरान मजीद की तालीम का सिलसिला शुरू किया। मुल्ला जी की आमद व रफ्त का सिलसिला वो मुनक़ते नहीं करना चाहती थी। उसे तवक्को थी कि मुस्तक़बिल की कोई ज़रूरत भी उनसे मुताल्लिक़ हो सकती है। अब फ़ातिमा घर वालों की नज़रों से चौप चौपा कर नमाज पढ़ने लगी थी। सुबह के वक्त कुरान की तिलावत भी किया करती थी। चूँकि उसके कमरे में इब्तिदा ही से किसी को दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए उसकी ज़िंदगी का अक्सर हिस्सा सीग़े राज में था। दिल के खामोश इनकलाब की गो वालिदैन तक को खबर नहीं थी, लेकिन बातिन की तामीर और रूहानी तकदीस का असर नामालूम तौर पर उसके गिरदो पेश में नुमाया था। ख़ानदान के दिलों में सिर्फ उसकी मोहब्बत व शफ़क़त ही का नहीं, तौक़ीर व एहतराम का जज्बा भी पैदा हो गया था। उसकी शख्सियत का असर बग़ैर किसी ज़ाहिरी सबब के लोगों के तहत अश्शऊर पर छाता जा रहा था। वो रात की तन्हाई में अपनी ख्वाबगाह के अंदर क्या करती थी, उसकी खबर किसी को भी न थी। लेकिन मुल्ला जी के ज़रिए सिर्फ इतना मालूम हो चुका था कि वो अपनी ज़िंदगी को सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के सांचे में ढालने का बहुत ज़्यादा एहतमाम करती थी। सबके सो जाने के बाद अपना कमरा बंद करके इशा की नमाज पढ़ती, उसके बाद सो जाती, फिर तहज्जुद के लिए उठती और तादमे सहर गिरिया, मुनाजात, तस्बीह व तहलील और दुरूद सलाम में मशगूल रहती। इसके दिल का आईना इतना शफ़ाफ हो गया था कि आलिमुल गैब के अनवार व असरार का वो खुली आंखों से तमाशा देखा करती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़िंदगी का रिश्ता दूसरे मशागिल से टूटता जा रहा था। घंटों वो खोई खोई रहने लगी। उसकी रूह की लताफत इतनी बढ़ गई थी कि कई कई दिन बग़ैर किसी ज़ोफ़ व नकाहत के वो रोज़े में गुजार देती थी। एक दिन मुल्ला जी जब शाम के वक्त पढ़ाने आए तो उन्हें मालूम हुआ कि साहिबजादी आज कुछ अलील हैं, इसलिए वो नहीं पढ़ेंगी। जूं ही वापस जाना चाहते थे कि आया ने इत्तला दी, साहिबजादी अपने हुजरा ख़ास में आपको बुला रही हैं। मुल्ला जी हिम्मत करके कमरे में दाखिल हुए। देखा तो फातिमा बिस्तर पर थी। कदम की आहट पाते उठ के बैठ गई और निहायत सरगोशी के साथ मुल्ला जी से कहा, आपके एहसानात से मेरी गर्दन हमेशा बोझल रहेगी कि आपकी वजह से मुझे ईमान नसीब हुआ और हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत इश्क से मेरी ज़िंदगी कैफ़ो सरवर के एक नए आलम में दाखिल हुई। अब मैं रूहानी कुरब की मंजिल में हूँ, जहाँ एक लम्हा के लिए भी मेरे सरकार आँखों से ओझल नहीं होते। आसार व कुराइन शहादत दे रहे हैं कि अब मैं हयात के आखिरी लम्हे से गुजर रही हूँ। आलिम कुदस का पयामी जल्द ही आने वाला है। मैं भी इसकी मुंतज़िर आँखों से राह देख रही हूँ। रख्ती सफ़र बांध कर मैंने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अपने अंजाम की फिरोज़ बख्ती पर दिल इतना मुतमईन है कि मुस्कुराते हुए पैकर अजल का खैर मुकद्दम करूँगी। सिर्फ एक आरज़ू है जिसके लिए मैंने आपको इस वक्त ज़हमत दी है।
अगर बाद मर्ग मेरी वसीयत पूरी करने का यकीन दिलाएं तो अर्ज करूं। इतना कहते कहते उसकी चमकती हुई आंखें आंसुओं से भर गईं। मुल्ला जी भी अपने तई संभल न सके और वो भी अश्कबार हो गए। भराई हुई आवाज में जवाब दिया, खुदा आपकी जिंदगी का इकबाल बढ़ाए, आपकी उम्र की बरकतों को दराज करे। लेकिन इल्मे खुदा में अगर यही मुकद्दर हो चुका है तो कोई उसे टाल नहीं सकता। आप अपनी आरजू का बरमला इजहार फरमाएं, मैं इसकी तामील का आपको यकीन दिलाता हूँ। साहिबजादी ने राजदाराना लबो लहजा में कहा, आप जानते हैं कि मेरे कबूल इस्लाम की खबर घर वालों के इल्म में नहीं है। वो तहनोज मुझे अपने आबाई मजहब का पैरोकार समझ रहे हैं। गो मैंने आज तक गिरजा में कदम नहीं रखा है, लेकिन वो इसे मेरी गैरत हया पर महमूल करते हैं। इससे मुझे यकीन है कि वो बाद मर्ग मेरी तजहीज़ व तकफीन मसीही मजहब के मुताबिक करेंगे और मसीही कब्रिस्तान में मेरा मदफन बनाएंगे। मैं नहीं चाहती कि अपना इस्लाम जाहिर करके मैं आपको और यहाँ के दूसरे मुसलमानों को आफात का निशाना बनाऊं। इसलिए मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बाद मर्ग जब वो मुझे ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन कर दें तो रात के किसी हिस्से में मेरा ताबूत निकाल कर इस्लामी तरीक़े के मुताबिक मुझे किसी मुसलमान कब्रिस्तान में दफन कर दें, ताकि अहले ईमा के जवार में रहकर मेरी रूह को सुकून हासिल हो। मुल्ला जी ने बरसती हुई आंखों से वसीयत की तामील का यकीन दिलाया। फातिमा ने आखिरी सलाम करते हुए कहा कि अब क़यामत ही के दिन फातिह महशर के लिवाउल हम्द के नीचे हमारी आपकी मुलाकात होगी। ये कहते हुए मुल्ला जी को रुखसत किया। सुबह के वक्त सारे शहर में कोहराम मचा हुआ था कि कमिश्नर साहब की लाडली बेटी की वफात की खबर बिजली की तरह हर तरफ फैल गई थी। अकारिब व अहबाब और गम गुसारों के हुजूम से कोठी में कदम रखने की जगह बाकी नहीं रही थी। इस अचानक हादसा से सारे खानदान पर गम के बादल छा गए थे। माँ बाप की हालत निहायत काबिले रहम थी। शिद्दत गम से वो पागल हो गए थे। इकलौती बेटी की मिर्गे नागहां उनके लिए क़यामत से कम नहीं थी। मातम व फ़ग़ां के शोर में दोपहर के वक्त जनाजा उठा। ईसाई मजहब के रसूम के मुताबिक लाश एक ताबूत में बंद कर दी गई। जनाजा के साथ साथ मुल्ला जी भी पुरनम चल रहे थे। ईसाई कब्रिस्तान में पहुंचकर ताबूत को एक पुख्ता कब्र में उतारा गया और ऊपर से संगे मरमर की सिल रखकर कब्र का खुला हुआ हिस्सा बंद कर दिया गया। दफन की आखिरी रस्म मुकम्मल हो जाने के बाद लोग कब्रिस्तान से वापस लौट गए। मुल्ला जी अपने जहन में कब्र का निशान अच्छी तरह महफूज करके सब के बाद वापस हुए। सीधे कमिश्नर साहब की कोठी पर पहुंचे और डबट बाई हुई आंखों के साथ कलमा ताज़ियत कहकर घर वापस चले आए। आज उन्हें पूरी राजदारी के साथ एक अहम फ़र्ज़ अंजाम देना था। इक़दाम इतना संगीन था कि हर कदम पर ख़तरात के अंदेशे राह में हायल थे। रात की तन्हाई में लोगों की नज़र से बचकर ईसाई कब्रिस्तान से किसी लाश को मुंतकिल करना इतना आसान काम नहीं था। हालात की नज़ाकत सोचकर मिला जी कांप उठे, लेकिन एक इस्लाम की शहजादी से किए हुए वादे की तकमील भी ज़रूरी थी। इस्लाम का रिश्ता इखलास भी इस अमर का मुतकाज़ी था कि जैसे भी हो इस फ़र्ज़ को अंजाम दिया जाए। सलामती का ज़मीर अंदर से जाग उठा था। आखिर बिस्मिल्लाह पढ़कर उन्होंने इस काम का आगाज़ कर ही दिया। अपने चंद काबिले एतिमाद दोस्तों को घर ले गए और शुरू से आखिर तक उनसे सारा माजरा बयान किया। वाक़या सुनकर लोगों की आंखों में आंसू उम्द आए। उन्होंने कफ़े अफसोस मिलते हुए मुल्ला जी से कहा, अफसोस के इस शहर में इस्लाम की फ़तह व सदाकत का इतना अजीम शान वाक़या रूनुमा हुआ और आपने कानो कान किसी को खबर न होने दी। खैर, जो होना था वो हो गया। अब जिस तरह भी हो, आज ही शबे वादे की तकमील ज़रूरी है। ठीक उस वक्त जबकि रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी, हर तरफ खामोशी का सनाटा तारी था। मुल्ला जी के अलावा 4 आदमी ईसाइयों के कब्रिस्तान में दाखिल हुए। ये इकदाम इंतहाई ख़तरनाक था, लेकिन इस्लामी हमदर्दी के जोश में ख़तरे का कतअन कोई एहसास नहीं हो रहा था। मुल्ला जी की रहनुमाई में 4 आदमी कब्र तक पहुँचे, संगे मरमर की सिल हटाई और कब्र में उतरकर ताबूत को बाहर निकाला। जूं ही लाश निकालने के लिए ताबूत का तख्ता खोला, मुल्ला जी के मुंह से चीख निकल गई। लोग हैरत से उसका मुंह तकने लगे। बड़ी मुश्किल से हवास पर काबू पाने के बाद लोगों को बताया कि लाश बदल गई है। हम लोगों ने गलती से दूसरी कब्र का ताबूत निकाल लिया है, ये लाश किसी और की है। लेकिन मिलाजी ने फिर गौर से देखा तो कब्र का निशान वही था जिसे दिन के वक्त देखा गया था। कब्र का नयापन बता रहा था कि ताज़ा कब्र यही है। अब ये नहीं समझ आ रहा था कि कमिश्नर साहब की बेटी के ताबूत में दूसरे की लाश कैसे आ गई और खुद उसकी लाश कहाँ चली गई।
सूरत-ए-हाल की तफ्तीश के लिए चारों आदमी लाश की तरफ बढ़े और झुककर देख ही रहे थे कि उनमें से एक शख्स बेसाख्ता चीख पड़ा, ये लाश तो बाराबंकी शहर के मिर्जा जी की है। मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। इस वाकया से उन लोगों पर दिल हिला देने वाली अजीब किस्म की हैबत तारी हो गई। दहशत से कांपने लगे और फौरन ही ताबूत का मुंह बंद करके उसे कब्र में उतारा। सकता तारी रहा। कई घंटे के बाद जब हवास बहाल हुए तो मुल्ला जी बोले, मशीयत-इल-ज़ही के राज को समझना अपने बस की बात नहीं है, लेकिन इतनी बात ज़रूर समझ में आती है कि अगर ये मिर्ज़ा जी की लाश है तो यकीनन मिर्ज़ा जी की कब्र में कमिश्नर साहब की बेटी की लाश होगी। लोगों ने कहा, ये बात करीन क्या ज़रूर है, लेकिन बेहतर होता कि हकीकत का सुराग लगाने के लिए हम बाराबंकी शहर चले चलें और मिर्ज़ा जी की कब्र खोद कर देख लें। ये बात तय करके सब लोग अपने अपने घरों की तरफ लौट गए। बिस्तर पर पहुंचने के बाद हर शख्स के जहन में यही अजीबो गरीब वाकया घूम रहा था। दूसरे दिन मुल्ला अपने चारों साथियों के हमराह बाराबंकी पहुंच गए। सीधे मिर्ज़ा जी की कोठी का रुख किया। दरवाजे पर आदमियों का हुजूम लगा हुआ था। दरियाफ्त करने पर पता चला कि परसों मिर्ज़ा जी का इंतकाल हो गया है, आज उनका तीजा है। इजहारे अफसोस और रस्म ताज़ियत अदा करने के बाद ये लोग भी ईसाले सवाब की मजलिस में शरीक हो गए। फारिग होने के बाद ख्वाहिश जाहिर की कि हमें कब्र तक पहुंचा दिया जाए ताकि उनकी कब्र पर फातिहा पढ़कर कम अज़ कम हक के दोस्ती तो अदा कर दें। एक शख्स की रहनुमाई में कब्रिस्तान पहुंचकर फातिहा पढ़ी और कब्र का निशान अच्छी तरह जहन में महफूज करके अपनी क़याम गाह पर वापस लौट आए। सारा दिन मिर्ज़ा जी के हालात मालूम करते रहे। पता चला कि इस इलाके के वो एक छोटे मोटे नवाब थे, अंग्रेज़ी तहजीब के दिलदादा और अंग्रेज़ों के गायत दर्जाए खैर ख्वाह थे। शामो सहर की ज़िंदगी ऐशो इशरत में डूबती रहती थी। घर का सारा माहौल अंग्रेज़ी तमद्दुन में गर्क था। शाम के वक्त खाने से फारिग होकर उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जबकि सारे शहर पर नींद का सन्नाटा तारी हो जाए। खुदा खुदा करके जब आधी से ज़्यादा रात ढल गई तो पांचों आदमी उठे और दबे पांव कब्रिस्तान की तरफ चल पड़े। खतरनाक इक़दाम की दहशत से दिल की धड़कन तेज़ हो गई, लेकिन हकीकत हाल की जुस्तजू के जुनून में आगे बढ़ते गए, यहाँ तक कि कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। अपने हाफ़ज़े की रहनुमाई में आसानी से मिर्ज़ा जी की कब्र तक पहुँच गए। कांपते हुए हाथों से कब्र की मट्टी हटानी शुरू की। काफ़ी देर के बाद तख्ता नजर आया। अब हिम्मत करके दो शख्स कब्र में उतरे और एक एक करके तख्ता हटाया। अब सफ़ेद रंग का कफन सामने नजर आ रहा था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद भी कफन खोलने की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। हर शख्स अपनी जगह कहे जा रहा था कि मालूम नहीं कफन का मुंह खोलने के बाद क्या नक्शा नजर आए। काफ़ी जुर्रत से काम लेकर एक शख्स ने पाइंती के तख्ते पर खड़े होकर चेहरे से कफन का नकाब उलट दिया। जो ही चेहरे पर नजर पड़ी, दहशत से लोगों का खून सूख गया। मिर्ज़ा जी की लाश के बजाय कब्र में एक अरब की लाश पड़ी हुई थी। डील डोल और चेहरे से वो अरब ही मालूम हो रहा था। ये मंजर देखकर लोग हैरत में डूब गए। जल्द जल्द कफन को दुरुस्त किया, तख्ते लगाए और मिट्टी बराबर करके कब्रिस्तान से बाहर निकल आए। सांस फूल रही थी। क़याम गाह पर पहुंचकर एक होलनाक सकते की कैफियत सब पर तारी थी। कुदरत का ये अजीब व गरीब तमाशा समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कमिश्नर की लड़की की लाश कहाँ गायब हो गई। नींद कुछ ज्यादा गहरी नहीं थी, सिर्फ पलक झपकती थी कि मुल्ला जी ने एक निहायत हुसैनो दिलकश ख्वाब देखा। वही कमिश्नर की बेटी फातिमा हूरे खुल्द के झिरमट में सामने खड़ी मुस्कुरा रही है। करीब आकर उसने सलाम किया। आलमे बरज़ख की सरगुज़िश्त बयान करते हुए उसने कहा, मेरी रूह जब आलमी बाला की तरफ लाई गई तो रहमत खुदा ने मेरी तौक़ीर व एज़ाज़ का एहतिमाम फरमाया। हुरान खुल्द ने मुझे चश्मा नूर में गोता दिया। मैं निखर गई। मेरे हुस्न की चांदनी जन्नत के मैदानों में हर तरफ बिखर गई। मैं देख रही हूँ कि आलमे बरज़ख में हर तरफ शौकती मोहम्मदी के झंडे लगे हुए हैं। सारे अम्बिया व मुरसलीन उनके दरबार में न्याज़मंदी से हाजिर हैं। जब मेरी रूह उनकी बारगाह में लाई गई तो तजल्लुयात की तेज़ बारिश से आंखें खीरा हो गईं। उनकी नाज बरदार रहमतों ने मेरी हस्ती का फ़रोग़ बढ़ा दिया। हुक्म हुआ कि मेरी लाश तय्यबा की सरजमीन पर मुंतकिल कर दी जाए। जिस दिन मेरी लाश ईसाइयों के कब्रिस्तान में दफन की गई थी, इसी दिन 3 लाशें अपनी अपनी कब्रों से मुंतकिल की गईं। मदीने में एक अरब सौदागिर जिसे हिंदुस्तान बेहद पसंद था, अरसा कदीम से उसकी आरजू थी कि वो यहाँ बूदोबाश इख्तियार करे। जब मर गया और लोगों ने उसकी लाश को जन्नतुल बकी में दफन किया तो आलमी बरज़ख के कार परवाज़ों को हुक्म हुआ मदीने में रहकर हिंदुस्तान में सकूनत इख्तियार करने की आरजू रखता था। मदीने की सरजमीन उसकी निगाह में अजीज़ नहीं थी,
इसलिए उसकी लाश को हिंदुस्तान मुंतकिल कर दिया जाए। इसे यहाँ पर रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी लाश बाराबंकी के मिर्जा जी की थी। ईसाइयों के साथ गायत दर्जा उल्फत की वजह से वो जिंदगी भर इंग्लिस्तान जाने की तमन्ना में मरते रहे। भूलकर भी उन्हें दियारे अरब का ख्याल नहीं आया। जब उनकी लाश दफन की गई तो हुक्म हुआ, इस्लाम से बेगाना होकर उसने जिस ईसाई कौम के साथ जिंदगी के दिन गुजारे हैं उसे उसी कौम के कब्रिस्तान में मुंतकिल कर दिया जाए। अमवाते मुस्लिमीन के साथ उसे हरगिज नहीं रखा जा सकता। अपना सिलसिला बयान जारी रखते हुए फातिमा ने ख्वाब ही में कहा कि फरमाने गैब के मुताबिक मदीना के इहाता नूर से अरब की लाश बाराबंकी के कब्रिस्तान में मुंतकिल की गई और उसकी खाली शुदा कब्र में लखनऊ से मेरी लाश पहुंचा दी गई और मिर्जा जी की लाश को ईसाइयों के कब्रिस्तान में मेरी जगह पर नकल कर दिया गया। फातिमा ने कहा, आलिम बरज़ख के इन वाक़यात पर हैरत की वजह नहीं। मौत के बाद इंसान के एतकाद और अमल का असर बरज़खी ज़िंदगी पर यकीनन पड़ता है। यहाँ पर हर आन इस तरह के मनाजिर निगाहों से गुजर रहे हैं। मैं वाज़ेह तौर पर महसूस कर रही हूँ कि इस आलम में किसी अमल को भी वो एजाज़ हासिल नहीं है जो इश्क़ रसूल को है। मेरी रूहानी आसाइश व तकरीम की सारी अर्जमंदी इश्क़ रसूल ही का सदका है। ये हकीकत है कि रहमत व करम की तस्खीर के लिए इससे ज़्यादा असर रखने वाला नुस्खा बनी नौ इंसान को अब तक मुयस्सर नहीं आ सका है। काश दुनिया के रहने वाले इस राज को समझ सकते। इतना कहने के बाद फातिमा की रूह निगाहों से ओझल हो गई। मुल्ला जी की जब आंख खुली तो उन पर एक रिक्कत अंगेज कैफियत तारी थी। बार बार वो सीना पीटते थे कि हाय, मैंने फातिमा की कदर नहीं की। बाकी 4 साथियों को वाकया सुनाया। वो भी फूट फूट कर रोने लगे और महबूबे खुदा के इश्क से मिलने वाले सम्राट को देखकर रोने लगे। सामेन किराम, ये थी हमारी आज की रुला देने वाली इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहानी। मिलते हैं इसी तरह की अगली दिलचस्प कहानी में। तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल अय्याज मॉरल स्टोरीज के साथ। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।